जी like जी I've done my research कि आप 16 या 17 के थे तब से आप पंजाब के लिए खेल रहे हैं. जी. I started playing for Punjab when I started playing, after my university. I finished my graduation from Punjab University, Guru Nanak University, Yeah. and I played 2 years. And that time there was no jobs in Punjab, So I wanted a job where I can have a job, plus at the same time I can keep playing cricket. But in a school like Amritsar was very popular in cricket because जी. we have produced lot of champions, like Bishan Singh Bedi, Vijay Mehra, Mhm. Harvinder Singh, or Sarandeep Singh. These are the players which played for the country. Yes, sir. So because of the reason was in the before the partition, that's what our coaches used to tell us. They used to go to Pakistan, play the match, come back home. Same thing used to be like Pakistan team, Pakistan 11, whatever the team, they used to come. Club team used to come in Amritsar, play the game and go back home because there is only a half an hour difference and 45 minutes. You can do up and down. That's why Amritsar cricket was very popular. So we are all done our graduation from Amritsar. Then we shifted to Delhi, like me and Bishan and Vijay Mehra. We all three of us shifted to Delhi, for a bigger career. So, sir, जब आप Delhi, when you moved to Delhi, you were very young. You were in early 20s. So, was there any fear of failure? ऐसे था कि क्योंकि नई जगह है, you don't know too many people in Delhi. So, what were the challenges like, and how did you deal with that? The challenges was because I was established myself in the first 2 years in Punjab, because my name was coming, because I played a lot of university. I done a lot. I performed very, very well in university, and because I played in combined university also. So I scored a lot of runs in the universities. Those days there was a 4-day games. So I scored a lot of runs. So then when I played for Punjab, I already established myself in the Ranji Trophy team. I don't have to wait for my chances to be in the 11. And Delhi, like you said, how was Delhi treated you? But I had a bit of rough time in Delhi because there was no one, to look after or to stay in Delhi. And so I was fed up with Delhi because I come from a very small town. So I used to love small town, but when I came to Delhi, I struggled. I had twice I was got sick. So my father came. He said, "No, let's go back home. Don't worry about anything. We have some sweet business in Amritsar, so you will go." Okay. I said, "No, I want to stay here." And I joined Delhi the third season. There was a little bit of rough time, but the only thing was rough time was the performance. Because I first 1 or 2 games I didn't do well, but third game, when you come from outside, people, the present player, those who are playing for Delhi, they always started talking, ki kya hai, ye hai, this hai. So the captain, Bishan Singh Bedi, said, wait for some time, this boy is something different. And जब sir your focus paid off, तो जब 1974 में कॉल अप आया इंडिया के लिए, तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि 6-7 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो आप डोमेस्टिक सर्किट में कर रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज होना और इंडियन टीम के लिए कॉल अप आना कोई भी प्लेयर का ड्रीम होता है. देखिए, रिएक्शन तो बहुत अच्छा था मेरा. रिएक्शन मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया था, दैट इज पेड ऑफ. नॉट पेड ऑफ, जस्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंडियन टीम. बट उसमें क्या था कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, यू हैव टू हाईलाइट योरसेल्फ. मैंने इतना हाईलाइट कर दिया था कि उनको लेना ही पड़ा. पर 74 में जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे को देखो, उन दिनों में ज्यादातर रेडियो में टीम अनाउंस हो जाती थी. टेलीविजन का इतना ज्यादा जमाना नहीं था, पर रेडियो में हमने अपना नाम सुना, या फिर आपको लोग बता देते हैं कि यू गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम. सो आपको यकीन हुआ था सर जब आपको किसी ने बताया कि आप इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए? तो आपको क्या, मेरा नाम चल रहा था, मेरे को लग रहा था कि मेरा आ जाएगा, क्योंकि चल रहा था. मैंने परफॉर्मेंस ही इतनी दी थी कि मेरा नाम चल रहा था कि he is going to be one of the member of the team. तो 1983 में when you all were playing the World Cup,
आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग ने आपको फेवरेट्स का टैग तो नहीं दिया था। तो उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में अंदर विद इन द टीम आप लोग क्या बात करते थे बिफोर द गेम और मैच में जाके क्या फाइनल तक भी पहुंच के आप लोग को ये बिलीव आया कि ऑल कैन डू इट? नहीं, let me very honest with you. When we started the journey for the World Cup in 1983, we never thought that we were going to win the World Cup. But we had a very good side, Yes. very good matured side, you know. And most of the players जो हमारे साथ थे, they wanted to do well in one-day cricket so they can prolong their career in one-day cricket. You know, that's what happened. That's what happened with us. And you know, the best thing was कि हमने ना वेस्ट इंडीज टीम को पहले 82 में वेस्ट इंडीज में हराया था वनडे गेम, बट स्टिल यू नो दैट टाइम वेस्ट इंडीज टीम वाज वन ऑफ द बेस्ट यू नो इन द वर्ल्ड, यू नो. सो व्हेन वी प्लेड द फर्स्ट गेम वी बीटन देम इन मैनचेस्टर, सो वी वन दैट मैच. उसके बाद भी हम ये नहीं सोच रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, लंबा टारगेट नहीं था हमारे साथ. बट जब हमने मैच जीता, नेक्स्ट मैच वी वर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे, दैट in Zimbabwe we had that confidence, नहीं हम जीत सकते हैं, ये मैच हम जीत सकते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे was below than us. So हमने पहला मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिला. अगर जिम्बाब्वे के साथ जब हमने खेला वो जीता और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला. ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले गए. हमें ये नहीं था कि मैं आपके साथ झूठ बोलूं कि नो we went for to win the World Cup, ऐसा नहीं था. ये वन मैच बाय मैच जैसे चलते गए. बीच में आके हमें quite a few matches, 1 or 2 matches we lost also during that World Cup, but we recovered. And that the famous match of 175 जहाँ कपिल ने game changer था, हाँ, against Zimbabwe, वो हाँ Trent में I think, हाँ तो उसमें क्या हुआ कि वो एक गेम चेंजर, बहुत बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि अगर वहां पे आ जाते तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता. बट दैट गेम was one of the best game I have ever played, you know, because of we are 17-5 and then from there you win the game. It shows, you know, that's what your team is capable of doing it, you know. That's what I told you, you know, that we had a very mature team. Yes, like match. That's where I think, you know, that match we won. फिर आपकी जब तो आपने तो एज अ प्लेइंग करियर आई थिंक यू अचीव्ड एवरीथिंग, बट एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, रिकॉर्ड्स आते हैं जाते हैं, पर एक रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटेगा जो आपने किया है वो 1975 में वर्ल्ड कप का फर्स्ट एवर बॉल आपने डाला है, नोबडी कैन ब्रेक. रिकॉर्ड हिस्ट्री में हमेशा रहेगा. Yeah, I never knew, because you know, like after a couple of years time, you know, one of the press people told me that you bowled the first ball. मैं कहा यार I never know. तो मालूम नहीं था, but अभी मेरे को मालूम है कि मैंने पहला बॉल किया था. तो that is also, you know, one of the things happens for you in life. तो प्लेइंग करियर तो एक बात है, बट एक चीज जो होती है, ठीक है प्लेइंग करियर आपका ड्रीम था, आपने अचीव किया, आपको क्रिकेट में खेला, बट जब क्रिकेट करियर खत्म होता है, जो सेकंड इनिंग्स जो मानते हैं जिसको लाइफ की, आपने उसमें बहुत कुछ किया. आपने एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स भी किए, आपने कोचिंग भी किया है. यू हैव कोच्ड द यूएई नेशनल टीम एट द 96 वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट टीम को भी कोच किया, आप इंडियन सिलेक्टर रहे हो, अभी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में भी हो आप. जब कोई स्ट्रगल थी जब आपने खत्म किया था करियर की, आगे क्या करना है? नहीं, स्ट्रगल तो थी, बिकॉज आफ्टर क्रिकेट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन यू ऑन यू, यू नो, कि कोचिंग में जाना है, कि कोचिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी. एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको आने देंगे या नहीं आने देंगे, क्योंकि आप फील्ड के अंदर नहीं हो, यू आर आउटसाइड द फील्ड, देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स हैपेंस देयर, यू नो. तो वो आई वांटेड टू बी बिकम एन एज अ सेक्टर, और वांटेड टू बी अ कोच, यू नो, बिकॉज मेरा पैशन ऐसा था कि मैं कोचिंग करता भी था. मैंने कोचिंग स्टार्ट भी की, फिर वो कोचिंग के बाद मेरे को एक असाइनमेंट मिला जो मैंने यूएई में किया था, यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो मैंने उनको चैंपियन बनाया था 1996-97 में. आई मेड देम क्वालिफाई. वहां से मेरा थोड़ा सा कोचिंग में नाम चला, बट वहां से चला तो सडनली मेरे को यू नो इंडियन टीम की कोचिंग जो मेरे को ऑफर हुई. I learned a lot. 1997 में जब मैं इंडियन टीम की कोचिंग ली, तो मेरे को काफी सीखने को मिला. I made a few mistakes. I'm not saying कि मैंने मिस्टेक नहीं किए, मैंने किए मिस्टेक when I was with the Indian team, क्योंकि मैं बड़ा पैशनेट था.
आई वांटेड द इंडियन टीम टू विन एवरी गेम, बट ऐसे होता नहीं है, वो पैशन वहां नहीं चलता है। ऐसे कोचिंग जब आप करते हो वो चलता नहीं है, बिकॉज यू हैंडलिंग ए डिफरेंट 15 पीपल, यू नो, दोज हु आर प्रेजेंट स्टार्स, यू नो। सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को जो आई थी वो हैंडलिंग द स्टार्स, यू नो, बिग स्टार्स, कैसे हैंडल करना उनको, वहां पे मैं थोड़ा सा मार खाई है मैंने। You know, it's very, very important to have how you handle the stars, you know, big stars, you know. They know the game very well, and they are already planning themselves what they have to do. But at the same time, when you're as a coach, you just go and tell them what to do. That is the art of telling them, you know. That is very, very important. Where you're going wrong, you have to do it one by one also. And you have to don't criticize in front of the people, you know, in front of the whole team. These are the things which I learned from there. तो सर आपके सिलेक्शन टेन्योर में एक ऐसा डिसीजन आपके टाइम में लिया गया था जो इंडियन क्रिकेट को बदल दिया, सौरव गांगुली को कैप्टन बनाना, जिसके बाद क्रिकेट पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आप लोग के माइंड में, आई नो कि आप बता नहीं सकते कि प्रोसेस क्या था, बट जब सौरव गांगुली को कैप्टन बनाया गया तो आप लोग ने उनमें क्या क्वालिटीज देखी जिसके बाद आप लोग सबको लगा कि नहीं यही है जो आगे इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सौरव जो था वो ही वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, he was leading, he was doing very, very well, and he was leading from the, he was active, he was like the thing which we see as a to make a captain who can lead from the front, you know, whose performance is good. अगर कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उसका ना परफॉर्मेंस का जो है टीम पे असर चला जाता है, क्योंकि वो सोचता रहता है अपनी परफॉर्मेंस के, बट वहाँ टीम आपको हैंडल करने हैं 11 प्लेयर और, तो वो वहाँ पे आपको देखना होता है कि ये हाँ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, he can lead from the front. That's what we thought about him. That's why we made him a captain. और आपको I just want to tell you that when I was a coach, I made Saurav to open the inning with Sachin Tendulkar. That was my decision also. Because I told Saurav, look, you going to number 5 or 6, I don't think it's going to solve any problem. So I wanted one left and right hand combination. So that's what I did. And Saurav was agreed, with no time. And he started opening the inning with Sachin and he never looked back. So these are the few things which you see, मैं पूछना चाह रहा था, तो आप तो फिटनेस लवर हो, फिर ये लॉकडाउन में जब ये हुआ तो कोई स्ट्रगल थी इनिशियली, क्योंकि घर में रहना और एक्सरसाइज नहीं कर पाना भी एक जो फिटनेस पसंद करते हैं, जो दौड़ना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो आपने कैसे डील किया उसके साथ? I think I got into a very good habit, very, very good habit. और लॉकडाउन के पीरियड में मैं एक्सरसाइज एवरी डे किया, और लॉकडाउन पीरियड में तो और ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम में कुछ करने को नहीं था। आप अगर एक्सरसाइज में 2-3 घंटे नहीं बताते तो फिर क्या करोगे? आप पेपर में नहीं हो, दोज डेज पेपर में नहीं आता था लॉकडाउन में, और आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, तो इट्स बेटर टू बी गेट टायर्ड योरसेल्फ, डू एक्सरसाइज, बी फिट। तो उसमें एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने वेट रिड्यूस किया है। तो ये इससे पता चलता है कि एटीट्यूड कितना जरूरी है। मतलब कोई भी मुश्किल आने से एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सही एटीट्यूड हो तो आप कैसे भी डील कर सकते हो इसके साथ। Definitely, 100% you are right, because attitude is the name of the game. You have to have an attitude, to become something. We teach attitude, and we teach how the champion players behave, what their attitude is, what they do, how you can become a champion. These are the things which matter. You see the great players, and I read a lot of books about the greats, even footballer, golfer, और यहाँ कोई भी दूसरे जो बड़े बड़े एंड्रे अगासी, मैंने सबकी बुक्स पढ़ी हुई है। मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है बुक्स, तो उसमें मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ा मजा आता है। अभी मैं जो मेरी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो स्विमर है अमेरिका का, माइकल फेल्प्स जी, उसने जिसने 7-8 गोल्ड मेडल जीते थे जी, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी आधी खत्म हुई है, तो मैं आधी खत्म कर दूंगा। तो वो उन चीजों से भी मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। You have to be a good student of life, to learn from you. I can learn from anybody. आपने बिजनेस की बात की, आपने बात की सक्सेस की, सीखने के बारे में। ये सब चीजें एक आदमी जो मैं जब अभी क्रिकेट देख के बड़ा हुआ हूँ उसने इंटेल किया है, वो है
महेंद्र सिंह धोनी, अभी उन्होंने कुछ दिन ही पहले रिटायर किया है, तो उनकी ऐसे क्या खासियत थी which made him great, which made him special? मिस्टर कूल है ना, बिकॉज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक नेचर होती है आपकी, वो एक नेचर होती है, जैसे मैंने पहले कहा ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। धोनी व्हाट धोनी हैज डन, दैट्स ही इज डन इट। अगर आप परफॉर्मेंस देते रहे हैं, आप क्रूशियल स्टेजेस में मैचेस जिताते रहे हैं, ये धोनी की खासियत थी। ये नहीं थी कि वो हिट नहीं मार सकता था, वो हिट मार सकता था, बट उसने गेम को खेला सिचुएशन के हिसाब से, दैट्स व्हाई ही बिकम ए ग्रेट प्लेयर। ये तभी बना है क्योंकि उसने क्रिटिकल स्टेजेस पे जाके मैचेस को निकाला है, तभी आपका नाम होता है, तभी आप ग्रेट कहे जाते हैं। जब आप सिचुएशन छोड़ देते हैं, आप अच्छा नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे भी गिरता है। दैट्स व्हेयर एमएस धोनी वाज द ग्रेटेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज आई थिंक आप उसके परफॉर्मेंस देख लीजिए एज ए कैप्टन, आप उसकी विकेट कीपिंग देख लीजिए, फैंटास्टिक विकेट कीपिंग, बैटिंग, कमाल की बैटिंग करता था। तो यही चीज ग्रेटनेस की होती है। और मैं समझता हूँ कि एमएस धोनी का जो नाम है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे वो छोड़ भी गए, उनकी फैन फॉलोइंग रहेगी ही रहेगी। तो उनकी खासियत यही थी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो मैंने एक और चीज सुनी है एमएस धोनी के बारे में, और आपको मुझे बताना होगा कि ये कितना जरूरी है कोई भी फील्ड के अंदर, ना ही सिर्फ क्रिकेट। मैंने सुना कि जब उनके करियर में वो सक्सेसफुल होने लगे और मनी आने लगा उनके लाइफ में, तब भी उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। वो फोन से दूरी रहते थे, प्रेस से थोड़ा दूरी रहते थे, ताकि वो क्रिकेट पे फोकस कर सके। और मैं कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी क्रिकेटर का, और वो कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें कहा था जब वो अपने करियर शुरू कर रहे थे कि देखो, क्रिकेट अच्छा करोगे तो पैसा आएगा, अगर क्रिकेट नहीं अच्छा करोगे तो नहीं आएगा। तो फोकस और डिटर्मिनेशन कितना जरूरी था उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, और किसी भी करियर पे आगे बढ़ने के लिए। नहीं देखिए, फोकस एंड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उन्होंने सम अप कर दिया ना एक ही सेंटेंस में, परफॉर्मेंस करोगे तो पैसा आएगा, द मनी फॉलो यू, you know, if you don't do well, how the money can follow you? It's not possible. Let's be honest. Yeah. हमें सच्चाई के ज्यादा जाना चाहिए। हमें और क्या था कि उसको प्रेस को हैंडल करना आता था। अब प्रेस को हैंडल करना भी एक आर्ट है। अगर आप प्रेस के सामने ज्यादा बोल देते हो ना कहीं, तो वो छोड़ते नहीं है आपको। वो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, दूसरे से तीसरा निकालेंगे, तो वो निकालते चले जाते हैं। बट टू द पॉइंट, प्रिसाइसली जो कहना चाहते थे वो कहते थे। और जो मैंने आपको बात बताई कि परफॉर्मेंस है, अब जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, देखो पैसा तो उसको आएगा ही क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं। जो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये पैसे की तरफ नहीं देखते, ये परफॉर्मेंस की तरफ देखते। अगर आपने पैसे को, मनी को काउंटिंग करनी है, तो फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। then your career is going to be very short. I think Dhoni has said the right thing. Yeah. तो सर, अब आईपीएल वापस आ रहा है, हम लोग सबने पढ़ा सितंबर में शुरू हो रहा है यूएई में, और ये फैंस नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंट होगा बिना फैंस के आईपीएल? देखिए, फैन के बगैर क्रिकेट का तो मजा नहीं आता भाई। आपको भी पता, हमें भी पता, मैं भी देखना चाहता हूँ कि स्टेडियम भरा हो, खिलाड़ी खेल, जो कहते हैं ना, खिलाड़ी जो अंदर खेल रहे होते हैं, उनके लिए भी वाह वाह करने के लिए कोई ना कुछ हमारे दर्शक होने चाहिए। To clap a good shot, to bowl a good ball, you have to clap big six. You know, it gives you a lot of confidence. और जब पब्लिक आपके पीछे रहती है, तो ये सब चीजें तो काउंट करती हैं। हमारे दर्शक जो हैं, यही बनाते हैं गेम को, यही गेम को बड़ा बनाते हैं। जैसे आईपीएल को इतना बड़ा ब्रांड हमारे दर्शकों ने बना दिया। और मेरे को खुशी है कि आईपीएल हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा समय पड़ गया था, गैप पड़ गया था। आईपीएल होना जरूरी था। हम इतना बड़ा कंट्री है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और आईपीएल क्यों नहीं कर सकते? बट ओनली थिंग मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा, हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हमको जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी फॉल इन प्लेसेस। जहां पे हमने कहना चूक की, वहां पे आई थिंक वी विल स्ट्रगल। मेरे को बस एक चीज जानना है कि आपको क्या इस बार जो आईपीएल हो रहा है, स्टेडियम में तो फैंस नहीं है, पर इतने गैप के बाद क्रिकेट हो रहा है कि सब अपने घर से फैमिली के साथ जुड़ के देखेंगे। तो इस आईपीएल का आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपीएल है हिस्ट्री में,
क्योंकि इस बार प्लेयर्स के परफॉर्मेंस ज्यादा नोटिस होगी, क्योंकि जो अच्छा करेगा उनका नाम और भी आएगा, क्योंकि सब टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए आप 7:30 टू लेके 10:30 तक लॉकडाउन रहेगा इंडिया में, क्योंकि इस साल मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल वाचिंग क्रिकेट। पर ये है कि व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और आपको देखने को मैचेस मिल जाएंगे और आप नोटिस हो जाएंगे, क्योंकि नोटिस तो वैसे भी होते थे। देखिए जो कई लोग तो स्टेडियम में देखते थे और कई घर पे बैठ के देखते तो आएंगे क्रिकेट इंडिया में। इंडिया में क्रिकेट बहुत देखा जाता है और हमारे दर्शक जो है बड़े पैशनेट भी हैं। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन, इस बार आईपीएल कौन जीतेगा? You are telling me टेस्ट मैच कौन जीतेगा, I tell you, but I won't predict 2020 क्रिकेट। ये लास्ट में 4 जो टीमें आती हैं उनका भी नहीं पता होता कि कौन जीतेगा। पर ये होता है कि देखिए लास्ट टाइम चेन्नई had a team who are experienced winning the team. Mumbai Indians has a team those who have won the title because they know how to win the title. आपको पहले बार ऐसा टाइटल 1-2 बार जीत जाते हैं ना, आपको आइडिया आ जाते हैं कि हम ऐसे जीत सकते हैं। कि इसमें सबसे ज्यादा 2020 क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा दिमाग लगता है कि कॉम्बिनेशन क्या है आपका, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन, बीच वाला कॉम्बिनेशन और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन। आपके पास कौन से बॉलर हैं, आपके लास्ट में अगर आपको 2 ओवर मिले आप 20-25 रन बना सकते हैं, which are the मैच विनिंग रन। आप क्रूशियल स्टेज में जाके लास्ट ओवर 2 ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज इट मैटर्स है ना। वो टीम बनाना वो बहुत जरूरी है। और जब आप इतने सीजन खेल रहे हैं, जैसे चेन्नई इतने सीजन खेल चुकी है, जीत रही है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। मुंबई इंडियन के बढ़ जाते हैं, लास्ट टाइम तो दिल्ली ने भी बहुत अच्छा किया था, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। पर राजस्थान रॉयल और हैदराबाद की जो है वो भी कम नहीं है, वार्नर वहां खेलता है, तो कुछ भी हो सकता है। इस क्रिकेट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बॉल पे, हर मैच पे, हर बॉल पे, हर हिट पे गेम चेंज होता है। इससे एवरी बॉल इज ए इवेंट इन 2020 क्रिकेट। अगर आपको 4 रन चाहिए, आपने 6 मार दिया, एक बॉल ने मैच जिता दिया। तो ये क्रिकेट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट टीम बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और फिर टीमें जहाँ पर अच्छी बना देती हैं कॉम्बिनेशन, तो फिर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्रेडिक्ट, I'm sorry, I cannot predict 2020. Okay, sir. Chalo, thank you, sir, so much for coming on the show. I really thank you very much for taking out time and coming. I really learned a lot. मैं तो बहुत सीखा, and I'm sure जो हमारे viewers हैं वो भी आपको सुन के बहुत कुछ सीखेंगे। आपको सीखना ही चाहिए, बिल्कुल। You always think that I'm a student and keep on trying harder and harder. Don't leave the line, you know. मैं कहता हूँ ना, लोग मेरे को, हमारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे कहते हैं बड़ा कंपटीशन है। मैं कहा कंपटीशन बताइए कहाँ नहीं है। आप लोग तो चाहते हैं कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप छोड़ोगे तो हम आगे आएंगे ना। क्योंकि कंपटीशन लगे रहना लाइन में बड़ा जरूरी है। सो नेवर गिव अप, नेवर एवर। देर हो सकती है, बट इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ योर प्रोसेस इज राइट, आई थिंक यू विल बी देयर wherever you think you want to go, you will go. चलिए सर, with your wise words, let's end this, because I think आपने जो बोला है बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, और फोकस, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क कितना जरूरी है। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच।